दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स में इंटीजर्स, आज हम लोग इंटीजर्स के विषय में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है ये आपका, अबाउट द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. After that we will learn the integers. Means there are so many types of numbers. First of all, you have to learn about the number that is natural number. After that you will learn whole number, and then now we will going to learn about the integers. So this is the third type of number. So first of all, I want to tell you that what is the natural number. This is the division of the topic. Dear, natural numbers means numbers which we used in the counting. That is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. 1 के बाद में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. स्टूडेंट्स जिनके माइक ऑन है वो अपने माइक को पुट ऑफ कर दीजिए. पुट ऑफ योर फोन, माइक्रोफोन. ओके, माइक्रोफोन अगर पुट होगा तो हमारी आवाज़ साफ आपके पास आएगी. तो सभी लोग अपना माइक्रोफोन पुट ऑफ कर दीजिए. So dear, here we want to tell you that about the first of all the natural numbers. What do you mean by the natural numbers? Natural numbers means numbers which we used in the counting, that are called natural numbers. That is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. They are natural numbers. After that, next one is whole number. Means if we include 0 in the natural number, then all those numbers are whole numbers. So these all are the whole numbers. Here we include the 0 in the natural number. Natural numbers are 1, 2, 3 and so on up to infinitely. And after that, if we include here 0, then we will get the whole number. Now moving for our topic, that is the integers. So what is the meaning of integers? Integers means all the whole numbers with negative and positive sign. All the whole numbers with negative and positive sign are called integers. So, for example, here is whole numbers are 0, 1, 2, 3 and so on. So you will write here 0 and then this is the whole number, that is 1, 2, 3, 4 and so on. And in the left side we will write here -1, -2, -3 and -4 and so on. So these all are the integers. That is negative and positive whole numbers are known as integers. Now next one thing is
negative integers and positive integers. So we will write here positive integers. Means that number which have only positive sign. Numbers with positive sign are called positive integers. After that means how can you say which are the positive integers? Means 1, 2, 3, 4. These are positive integers. Okay, now next one things is that is negative integers. So dear, the numbers with negative sign are called negative integers. Numbers with negative sign are called negative integers. We will write this as negative integers. So if we write just into the counting, then you will get what is the negative integers means the numbers which you write in the negative sign. So that numbers are negative integers. So you can say here that is -1, -2, -3, -4 and so on. These are the negative integers. तो अगर हम किसी भी नंबर में माइनस साइन को पुट कर देंगे तो वो सभी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, और अगर आप वहाँ पे प्लस साइन को इंडिकेट करेंगे तो वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जीरो। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर बट इट इज नॉट नाइदर नॉर नेगेटिव। जीरो भी आपका इंटीजर है लेकिन ये ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ integers, negative integers, positive integers. So you can write that note here what is the meaning of zero in the case of integers. इंटीजर के केस में जीरो को क्या कहेंगे और इसको कैसे हम लोग इंटीजर्स में रखेंगे। So dear, you will note it that zero is neither negative and nor positive integers, but it is a integer. ये इंटीजर तो है लेकिन ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे याद रखेंगे, जीरो भी आपका इंटीजर है
लेकिन ना ही वो आपका नेगेटिव इंटीजर है और ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में होल नंबर की तरह यहाँ भी प्रॉपर्टीज हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, सबसे पहली प्रॉपर्टीज so what is the properties of natural integers? That is, if and b are two integers, then the result will be same if you change the position. That is, a plus b equal to b plus a. For example, let us 2 is integer and 3 is also integer, so you will get 3 plus 2. So these both are same result. Okay, so it means commutative property hold under the integers. And second one is closure property. So what is the meaning of closure property? वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। एक बार फिर समझ लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। कोई भी 2 या 3 इंटीजर को अगर हम प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपका इंटीजर ही होगा। तो यही है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर ऐड कर रहे हो और उनका प्लेस चेंज करके फिर से ऐड कर रहे हो तो हर बार आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो उसको आप कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे 2 + 3 क्या होता है 5, और 3 + 2 क्या होगा वो भी 5 होगा। इसी तरह से 5 + 1 क्या होगा 6, और 1 + 5 क्या होगा वो भी 6 होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी में आप कोई भी 2 इंटीजर को अगर प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा इंटीजर ही मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं a प्लस बी प्लस सी, आपने पहले a और b को प्लस किया फिर c प्लस किया, तो आपको यहाँ पे a प्लस b प्लस सी, और इधर में आपने पहले b प्लस सी को ऐड किया और बाद में a को ऐड किया, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। और यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, तो यहाँ 3 और 4 को आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 3 + 4 को प्लस करने से 7 होगा, और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 होगा। तो इधर भी 9 और इधर भी 9। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे याद रखेंगे? अगर इसके ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर दें तो रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ये होता है एसोसिएटिव। पहले यहाँ फर्स्ट 2 नंबर्स में इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ था और इधर लास्ट 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मींस जिसमें ब्रैकेट का पोजीशन चेंज होता है वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स।
इसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट वन इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसके विषय में भी जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं a इंटू बी प्लस सी, देन दिस इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मीन्स ये a b और c दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। a b के पास भी आ जाता है और a c के पास भी आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के विषय में जानेंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। मान लो आपके पास इंटीजर्स है 1 2 ले लेते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर समझ में आ जाए। 2 इंटू 3 प्लस 1, और यहाँ पे मैंने लिया, इसके हिसाब से हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। मीन्स 2 3 के पास भी आ गया, 2 1 के पास भी आ गया। अब आप रिजल्ट देखिए, तो रिजल्ट जब आप देखेंगे तो क्या मिल, आप देखिए यहाँ पे 2 3 प्लस 1 क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 को पहले सॉल्व करें। पहले अपना माइक को पुट ऑफ कीजिए, किसी के यहाँ टेलीविजन चल रहा है उसकी आवाज आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 क्या होता है 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8। इसके बाद इधर राइट हैंड में देखिए 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और इधर 2 इंटू 1 क्या होता है वो 3 होता है, और सॉरी 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6। तो 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, और इधर भी रिजल्ट कितना आ रहा है 8। सो 8 इक्वल टू 8। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स जिसमें कोई भी इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अगर यहाँ 2 नंबर है तो दोनों के पास चला जाता है, a इंटू बी, बी के पास भी आ गया, और a इंटू सी, सी के पास भी आ गया, और इसका रिजल्ट दोनों साइड का सेम ही होता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी विल मूव हियर that is additive inverse and additive identity. So here is next property is that it additive inverse. So what is the meaning of additive inverse? Additive inverse क्या हो? Yes, let us a is a number that is integer, then minus a is the additive inverse of that number. This will gives, otherwise minus a is a number, then opposite of minus plus, plus the additive inverse of this number.
सो गिव्स यू रिजल्ट 0 इन बोथ केसेस। अगर इसको आप प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। Let us, here is a question, is the integer, then what is the additive inverse? तो आपको यहाँ साइन चेंज कर देना है और बता देना है +8। +8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कहा 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा? -5। एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। सो दिस इज -5। तो आपको क्या करना है? साइन चेंज करके आंसर सेम नंबर ही देना है। जो भी नंबर दिया गया है उसका केवल आपको साइन चेंज करना है और साइन चेंज करने के बाद वही आंसर देना है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो 3 ही होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, -3 बता देना है। अगर हम कहेंगे -4 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? +4। माइनस में साइन चेंज कर देना है केवल, तो आपका हो जाएगा +4। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Meaning of multiplicative inverse. In this case, let us a is a integer, then 1 by a is the multiplicative inverse. It is written as, if 1 by a is given, then a is the multiplicative inverse, and the result both multiplication will be 1। आप देखो ए से ए कट जाएगा, ए से ए जगह हम काटेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल है और यहाँ भी ये एग्जाम्पल था। तो क्या करना है? हमने आपसे कहा -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2। आपको सिर्फ इसे डिवाइड में लिख देना है, 1 बाई -2। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स इसे फ्रैक्शन में लिख देना है, जो भी नंबर दिया है उसे डिवाइड में लिख देना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये इसको हम कहेंगे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिसे हम कहेंगे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो ये हो जाएगा 1/3। मैंने आपसे कहा 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा? 1/8। मैंने आपसे कहा -11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो ये हो जाएगा 1/-11। और ध्यान दो, अगर मैंने आपसे पूछ दिया 1/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका भी उल्टा करना है, 12/1। इसको उल्टा करेंगे, ये नंबर ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो 12/1 को क्या कहेंगे? 12। 12 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/12। मीन्स जो भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा गया है उसका आपको रेसिप्रोकल बताना है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, रिवर्स। मीन्स उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना है। देखो मैंने पूछा कि 7 का मल्टीप्ल, तो यहाँ 7 को आप लिख सकते हो 7/1। तो 7/1 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बताओगे तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो आपको जो नंबर दिया है उसे डिनोमिनेटर में लिख देना है,
तो वो आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ पूछिए, बोलिए। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे और आपका जो होम असाइनमेंट है गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी पोस्टेड है, आपको मिल भी गया होगा, तो वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और ये प्रॉपर्टीज को आप समझ लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।